Hello, everybody, and welcome to the open classroom. Dear students, today we shall continue with the poem On Killing a Tree in the open classroom. On Killing a Tree, which is written by G. Patel, is a very sensitive poem, and today we shall explain it with its complete exercise and with full summary. Let's start from its summary. The poet G. Patel writes that a simple cut does not destroy a tree. A tree grows gradually, it is rooted in the soil. A plant takes nutrition from the soil to grow into a big tree. It is firmly bound with the soil. It takes in sunlight, water, air to grow into a strong trunk and have numerous tree leaves. Humans cut and chop the bark of the trees into many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. The point of the tree which gets cut gives out sap, just like a human body bleeds. This wound heals, and from these new branches start growing again. The poet says that in order to kill the tree, it has to be uprooted. One has to separate the tree from the earth. Then the most sensitive and hidden part of the tree, the roots, have to be detached. The roots are white in color and are damp. Once the tree has been uprooted, then gradually it withers and dries up with the action of the heat and wind. The trunk will become brown, twist, and will harden. Finally, the tree will die this way. This is the summary, and let's go to the exercise. The question number 1: Can a single jab of a knife kill a tree? Why not? क्या एक छोटे से कट से हम इसको काट सकते हैं, किल कर सकते हैं ट्री को? आंसर इज नो. A simple jab of the knife cannot kill a tree. A tree takes many years to grow to its full size by absorbing sunlight, air, and water. The roots of the tree grow deep and hold it firmly in the soil, so only a chop cannot kill the tree because it will slowly heal up and grow to its original shape and size. तो एक सिंपल कट से ये संभव नहीं है कि हम एक इतने मजबूत ट्री को किल करें. ये आपको इसका आंसर देना है. नाउ second question is, how has the tree grown to its full size? List the words suggestive of its life and activity. ट्री की लाइफ और एक्टिविटी को सुजेस्ट करने वाले वर्ड को एनलिस्ट करो. ये क्वेश्चन है. द आंसर इज वेरी क्लियर. द ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाय कंज्यूमिंग नरिशमेंट फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट एंड absorbing sunlight, water, and air for several years. The words suggestive of the tree's life and activity are grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of light, sunlight, air, water, sprouting leaves. जो इसमें इसकी लाइफ और एक्टिविटी को सुजेस्ट करने वाले ये वर्ड हैं. ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ को कंज्यूम करके, इससे नरिशमेंट पा करके ये कैसे ग्रो करता है और कैसे ये क्रस्ट में फीड करता है, क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट से, ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, स्प्राउटिंग लीव्स. तो इस तरह से आपको आंसर देना है. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क एंड व्हाट मेक्स इट ब्लीड? ये ब्लीडिंग बार्क का क्या अर्थ है और कौन सी चीज इसे ब्लीड करती है? ब्लीडिंग बार्क क्या है? The answer is, as we discussed earlier, bleeding bark means the twigs which are cut mercilessly, they leave a liquid substance. If any part of the human body is cut, it starts bleeding. In the same way, the liquid substance comes out from the branch of a tree. The human wings X makes it bleed. जब हम इसमें कुल्हाड़ी चलाते हैं तो इससे एक सैप निकलता है, इससे जो रस निकलता है वो ह्यूमन बॉडी के
ब्लड की तरह होता है, ह्यूमन ब्लड की ब्लीडिंग की तरह ही होता है, ऐसा इसमें कहा गया। तो ब्लीडिंग वार्क तब का है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? नो वर्ड से क्या मीनिंग है? स्टेंजा 4 को नो से स्टार्ट किया गया है पोइट के द्वारा, तो नो किसके लिए कहा है? आंसर इज नो इज यूज टू एम्फेसाइज द perspective that chopping or hacking will not be sufficient for killing a tree, कि किसी ट्री को सिंपल चॉप या सिंपल कट से किल नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई द पोइट यूज द वर्ड नो इन थर्ड स्टेंजा, इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। तो नो का यूज क्यों किया गया है? इट्स नॉट इजी टू किल अ ट्री बाय ए चॉप। Question number 5 is what is the meaning of anchoring earth and earth cave? दो phrases इसमें यूज हुए हैं। फर्स्ट phrase is anchoring earth, then earth cave. इससे आप क्या समझते हैं? What is the meaning of these two phrases used in the poem? Answer is it means that the earth protects it like a mother. Earth cave implies a hole inside it. The tree allows its roots to spread underneath. The earth protects it and fosters it. It provides all the essential ingredient to the tree. तो अर्थ केव का मतलब यही है कि एक होल जिसमें ट्री रहता है और ग्रो करता है, बिल्कुल एक मदर की तरह उसको प्रोटेक्ट करके उसकी रूट्स उसमें स्प्रेड हो जाती है नीचे, और उनको अर्थ जो उसको प्रोटेक्ट करके उसको वो सब इंग्रेडिएंट देती है जिससे वो ट्री बनता है। तो दिस मे बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? इसमें एक और फ्रेज यूज हुआ है। द फ्रेज इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। इसका क्या मतलब है? द क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है, फ्रेज किस लिए यूज किया गया है। द आंसर इज द स्टेम और रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज्ड। क्या कहा है कि रूट्स जो जमीन में होती है, जब उसको पुल आउट करते हैं हम, तो सारी जो रूट्स हैं वो बाहर दिखाई देती हैं। तो रूट्स आर नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। तो यही वो फ्रेज, इसी के लिए फ्रेज यूज किया गया है, इसके स्टेम, इसके रूट्स के लिए कि कितनी स्ट्रांग होती है रूट्स और वो पकड़े रखती है अर्थ को। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? ट्री को कैसे किल किया जा सकता है फाइनली? क्वेश्चन ये है क्योंकि ट्री को किल करना इजी नहीं है, जैसे पोइट ने कहा भी है। द आंसर इज पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ एंड स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग it in the sun and air kill the tree. It becomes brown, dry and gets hard. Eventually it dies. Pulling out the tree from the mother earth. मदर अर्थ से इसको पुल करना पड़ता है, इसको सुखाना पड़ता है, इसकी चॉकिंग करनी पड़ती है सन में, एयर में, तब ये ख़त्म होता है और ये ब्राउन होकर के, ड्राई होकर के हार्ड हो जाता है। इवेंचुअली इट डाइज। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम? तो मैसेज क्या है पोइम का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पोइम में एक मैसेज छिपा होता है। इसका क्या मैसेज है? ट्रीज शुड नॉट बी कट बिकॉज डिस्ट्रॉइंग ट्रीज इज जस्ट लाइक किलिंग अ ह्यूमन बींग्स। ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, क्योंकि किसी ट्री को काटना एक ह्यूमन बींग को किल करने के बराबर है। तो कंपेयर किया गया है ह्यूमन बींग्स के साथ, इसकी ट्री को काटना किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। यही इसका मैसेज है कि हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। सेव ट्री, सेव एनवायरमेंट एंड थैंक्स अ लॉट।